Yeah. So point number one is what in letter writing we have block style letter. So block style means what? Straight line. Are you seeing this straight line in the address, in the references and date? Straight line will be means everything will be coming in straight line. Yeah. Same case here, the letter will be in the straight line. The address of the sender's address, receiver's address, and then letter, the whole letter will be in the straight line. Means when all the things will be in combined paragraphs. Next one. Now, when you're going to talk about the indented style, if you see here in an indented style, the address will be coming in this descending order. Then here again the date and references will be coming in straight line. Then sender's the receiver's address is there. Then next here is the subject, and again the I think the sequence of is a what, an indented style. Okay, so block style and indented style, we have two types of letters in English. All right, till now. Another thing is what, point number one, I'm going to start here. The first thing you're going to see is what, your sender's address. So don't put the name generally. Why? This is the kind of mail writing and letter writing as well. Don't write your name. अब तक हम लोग name वगैरह लिखते थे. It doesn't matter that you're writing your name or not. So you can just write down, for example, double dealers means your company's name. अब उधर आपको जरूरी नहीं, वहां पर आपको अनवर शेख लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालूम है भाई किस कौन ओनर है इसका, अनवर शेख है. So it doesn't matter that you're writing or not your name, but your firm's name is coming there, so you can just write it with the address. Okay, next one. Now you can add there the dates. Next, your reference number and your reference number and our reference number. So reference number, it is not necessary. If you have, then you can put over there. Otherwise, no problem at all. You can just go with the date. Next one. Here I see the address, and in the reference, there should be one line space. There should be one line space. Yeah, please ask. Actually, आपने बोला कि नेम नहीं डालने का. Yeah. But sometimes in my foundation, many girls, 2000s girls, how they find out? Now let me tell you one more thing. If you're writing, means see, this is what for what? This is about your company, and you are the owner of the company, right? So company, अगर आपने कभी आज तक के देखा कि Reliance ने आपको मेल किया and they are writing that Anil Ambani is writing you, Mukesh Ambani is writing you? No. या फिर कभी आपने ऐसे देखा उसके मैनेजर का नाम आया कुछ हो, ऐश्वर्या? नहीं. No. So why? Because the company name is mattering over there, right? Okay. That's the main thing. And if you're writing individually, then you have to put their name. Okay. Necessarily. Are you getting that? Okay. मतलब कंपनी के लिए रहा तो कंपनी का नेम. Yeah. Personally रहा तो हमारा नेम. Yeah, exactly. So one line space you have to leave here. Next one. Now, before writing the address of the receivers, before writing the name and the address of the receiver, you have to leave there one line. Are you seeing there, leave a line? Yeah. So you have to leave one line over there. Next one, you can just put there the name of the person whom you are writing. For example, Mrs. J.R. Noakes. There comma. ये जो comma है, ये बहुत पुराने स्टाइल का है. ये आगे के एक भी लेटर के अंदर आपको comma पीमा कुछ नहीं मिलने वाला है. This is what the ancient time of letters we used to use there only commas. Comma, मैंने underline भी किया उसको. This is the old style. Now the new style letter I'll be showing you ahead. So you can write the name of the person, then address, city and all, and then pin code number and all. This is what the international address है. नहीं तो आप लोग बोलेंगे ऐसे कहीं को आ रहा है SB96PT. All right, this is international address. Next one. Now leave the one line. Again, you have to leave a line. Next, dear Mrs. Noakes. Now let me tell you one more thing. अब अपने इधर क्या करते हैं, एड़े चले गधे चले क्या करते हैं अपने इधर? They write your subject. Yes or no? Yeah. Always subject, remember then you have to write the greeting first, then you're going to talk about the subject. Why? Because मुझे एक बात बोलिए राहुल, अभी अपन जा रहे किसके पास में, प्रिंसिपल के पास में जा रहे हैं. अपने को 2 दिन का छुट्टी चाहिए, राइट? तो अपन जाके डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऐसे दरवाजे में घुसेंगे, उसको बोलेंगे 2 दिन, मेरे को 2 दिन की छुट्टी चाहिए सर, गुड मॉर्निंग सर. तो बोलेगा अरे निकलता तेरे को चप्पल विप्पल दे डालता मैं इधर से भी. राहुल हाँ, चिढ़ेगा कि नहीं फिर वो प्रिंसिपल उधर? ऑब्वियसली, बिकॉज अपन ने क्या किया, डायरेक्ट जाते के साथ में उसको अपनी फरियाद सुनाया. अपन ने अपना जो काम था वो सुनाया और बाद में उसको सलाम कर रहे हैं हम लोग. अभी मुझे एक बात बोलिए, नमस्ते, नमस्कार, सलाम वगैरह जो भी आप लोग करते हैं,
तो वो पहले करते कि बाद में करते हैं? पहले करते हैं। Starting एग्जैक्टली में। हम लोग जब ग्रीट करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो हम लोग पहले जब फोन उठाते तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बोलते ए 2 दिन की छुट्टी मांगता मेरे को, गुड मॉर्निंग सर। अरे तेरी तो फोन में घुस के मारेगा अंदर से वो। Yes or no? So means what? Ultimately, you're going to wish first. Are you getting that? And then you're going to write your subject. This is what, you know, underlined word, It is letters. not necessary that we have to write subject and then semicolon and the. No, 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 it is not. It is not. See, are you seeing here any semicolon over And here? Are you is seeing any there Yeah. references also there? Na, we have to mention reference also. See here, the reference is there. Our reference, your reference, and you can put the reference at the end as well in the letter. I'll show you Actually, ahead. Actually, I have done my typing exam. In Hmm. that, we were having like block letters and intended letters. Like so, in that we having address. We have. Okay, we have address. Yeah, Then means our address and the company's address, and then subject, reference, and then greeting, and then the blocks contain which is where was the class? needed. Babajan Chowk. Baba Jan Chowk is in Pune, right? And we Yeah, are learning yeah. from today. It is what? Absolutely from UK book. So this Yeah. is what the same, what mistake we are commenting over here. So this is what in every letter in the whole book you will find that first greeting and then address, then subject. First greeting, then Yeah. subject. First greeting, then subject. So this is what our first mistake. Point number 1. हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते बीच में इधर एड़ेगी Yeah. ऐसा, और फिर उसके बाद में ग्रीटिंग लिखते। गलत हो गया ना वो, कि सही पहले हम लोग है। फरियाद बता रहे हैं I और फिर agree. उसके बाद में हम लोग ग्रीट कर रहे हैं। मतलब ही नहीं, तो वही बात हो गई जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मेरे बॉस को कॉल किया, हेलो बॉस 2 दिन का छुट्टी वो चाहिए, टू भी Good morning, लिखते sir. हैं एंड कॉमा भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं It रहता। is फॉर not एग्जांपल जस्ट टेल मी necessary वन ना, मोर थिंग, but या मींस दे आर रॉन्ग। Yeah. मैं वही तो बता रहा हूँ आज आपको कि हाउ दे आर रॉन्ग, दे आर राइटिंग टू एंड ऑल। ऐसे टू लिखने की जरूरत है क्या? अभी ऑब्वियसली भाई मैं लेटर लिख रहा हूँ तो इसकी यहाँ पर मुझे पता है it is दिस इज necessary व्हाट that फ्रॉम, we are दिस इज व्हाट from. फ्रॉम डबल डीलर्स, राइट? ये मुझे पता है, तो यहाँ पे फ्रॉम लिखने की जरूरत है क्या? No. यहाँ पे किसका एड्रेस आता है? सेंडर्स का एड्रेस आता है, राइट? ऑब्वियसली सी बात है भाई, यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस आएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम डबल डीलर्स। नहीं, इतना तो हम लोग कॉमन फॉर्म सेंस नहीं है। लिखा ना तो मार्क्स कटेंगे, ऐसे बोला था वो टीचर। टीचर आपकी ईडी है फिर, वो सॉरी टू से दिस, वो मतलब वो टीचर को फिर यार, वो टीचर को फिर बहुत बड़ा खर्चा है फिर वो टीचर। एंक्लोजर तक करना पड़ता है, पता है। सब करना पड़ता है, मेंशन आधा करना मार्क्स रहा हूँ। कट हो जाएंगे, ऐसे हाँ। बोला था। मीन्स they वो are nuts। डिट्टो वैसे के वैसे करना है। ये देखो कुछ लोग बोलते क्या सर आप टीचर लोग को ऐसा बोलते, क्या सर आप टीचर लोग को ऐसा बोलते। नहीं, एक्चुअली टीचर लोग बहुत मैं अच्छे थे, पर वो जो आपके साथ हूँ। एजुकेशन सिस्टम जो था ना, अपना जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर अभी भी अपने को वही पढ़ा जाता है कि बाबा अपन बंदर लोग थे पहले, है क्या नहीं? तो अपने को भी अभी वही लगता है कभी कभी, अगं आई तू पण होती का तशीच, बाबा पण तशीच होते का, हा थोडे तोंडाने दिसतात जरा मला, तो वहां पे प्रॉब्लम ये है हमारा। सो पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट, यहाँ पर जो है ये सेंडर्स एड्रेस है, तो हम लोग को फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज व्हाट टू, तो हम लोग ये इसको लिख रहा है, तो टू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और अपने इधर क्या था, टू लिखने का बराबर कॉमा लगाने का नॉनसेंस, ऐसे कुछ भी नहीं है। सो यू कैन जस्ट अवॉइड द टू, आपको पूरे लेटर्स के अंदर आगे मिलेगा, टू कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट वन, सो योर ग्रीटिंग विल बी हियर एंड देन नेक्स्ट विल बी योर what subject will be there, all right? So greeting, Yes. and then your subject. So greeting, see here, dear Mrs. Noakes, अभी fully formal letter है, तो यहाँ पे इसमें dear क्यों लिखा हुआ है? dear क्यों Dear लिखा है means इसमें? respect है। Actually respect है वो एकदम हाई लेवल की, और उसको बहुत एकदम पर्सनली बोल रहा है वो। So repairs to new garage, repairs to new garage, अभी क्या कर रहा है, गराज के लिए एक उसको लेटर लिख रहा है, so वहाँ पे dear बोल रहा है। और अपने इधर क्या करते थे, respected मतलब बहुत ज्यादा इज्जत वाले, मतलब पहले बेइज्जत था क्या वो? सर मैम, पहले बेइज्जत था क्या वो? जलील था क्या पहले वो? नहीं ना, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डियर मिसेस नोक्स हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं if their title is mentioned. Next one will be coming with your own subject, okay? Repairs to new garage doors, for example. Now here and see block letters के अंदर देखो वहाँ पे उसने कैसे कैसे सेपरेट करके उसने ये लिखा है क्या, पैराग्राफ्स, उसने 3 पैराग्राफ्स उसके अंदर दिया है। This is what, see, I'm sorry that you are not satisfied with the installation of new garage doors that was carried out on 22nd September. However, I cannot agree to carry out the repairs. You can ask without charging a further fee.
पॉइंट नंबर 1, वो कंप्लेन कर रहा है, दिख रहा है मिस्टर अनवर? पहले पैराग्राफ के अंदर वो कंप्लेन कर रहा है. Getting it? Number 2, it is fortunate that you are accidentally reversed into the doors, but I am not surprised that the hygienes and the bolts broke as the result. I think in this case it would be fair to blame the car and not poor workmanship on our part. अब वो दूसरी बात में क्या कर रहा है? फर्स्ट में वो उसको क्या कर रहा है? वो कंडोल कर रहा है. सेकंड वन में उसको वो मना रहा है कि हमारा प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम के बराबर बीच में जा रहा है, मेन रूट कॉज बता रहा है वो. However, since the repairs needed a fairly minor, I am prepared to refit the doors and charge only for the cost of the new hygienes and bolts. और लास्ट में बता रहा है उसका सोल्यूशन. प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम किसकी वजह से हुआ, और लास्ट में सोल्यूशन. एंड आई होप दिस विल बी सेटिस्फैक्ट्री. लास्ट में उसको एक डायलॉग मार रहा है वो, आई होप दिस विल बी सेटिस्फैक्ट्री, योर्स सिंसियरली. थैंकिंग यू है क्या वहां पर? नहीं. You will never ever find in any letter thanking you. क्यों? क्योंकि वो अपने इंडियन भिखारी लोगों के लिए रखा था उन लोगों ने. मालूम है आपको? कितने शर्म की बात है कि अंग्रेज लोग खुद उनके लेटर्स के अंदर कभी थैंकिंग यू लिखते नहीं, और अपने को बोलते हैं अपने टीचर्स थँकिंग यू लिहायचं, थँकिंग यूच लिहायचं त्यांना. हाँ, नाहीतर मार्क्स भेटणार नाही तुम्हाला. अब बच्चे लोग मार्क्स के चक्कर में कुछ भी करते हैं. या थैंक यू ये भी नहीं, थैंकिंग यू बोलते हैं. थैंक्स एंड रिगार्ड ना. या थैंक्स एंड Getting योर it? फेथफुली. वो आगे आएगा ना, अभी थोड़ा ठंडा तो खाओ आप लोग लेडीज लोग. So this is what I hope this will be satisfactory. You have to leave one line space, and here every paragraph you have to leave one line space, one line space, one line space. See, मैंने highlight किया उसको literally. One line space, one line space. After your address means the receiver's address, one line space will be there. Then greetings, then again one line space. Then subject, again one line space. अब वो subject के लिए जरूरी नहीं यहाँ पर SUBJECT फुल कोलन बिलन मेहंदी बिंदी निकाल के फिर पूरा सब्जेक्ट लिखते थे. मालूम है बाबा ये सब्जेक्ट है, समझ में आएगा ना, इतना तो दिमाग है ना बाबा. क्योंकि लेटर लिख रहा है तो बच्चा थोड़ी रहेगा वो एक्चुअली बोल्ड भी करते हैं सब्जेक्ट को. वो एडर हो गया हाईलाइट होने के लिए. एक्चुअली हमें कैसे पढ़ाने थे, कोई पॉइंट्स थे जैसे डेट, सब्जेक्ट, रेफरेंस, इसको सबको बोल्ड कराते थे हम. ये देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है. या मींस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, बट सब्जेक्ट, रेफरेंस एंड डेट को बोल्ड करना था. Wrong, they are और wrong. कंपनी का जो नाम है हाईलाइट होके आता है, फिर उसके नीचे मींस कंपनी लेटर जो है, कंपनी का नाम आता था ब्लॉक लेटर्स में, एंड देन उसके बाद उसका एड्रेस आता था, मींस मिडल में आता था. एंड देन उसके बाद साइड में उनका ये नाम एंड ऑल आता था, एंड अपना नहीं सॉरी, या मींस उनका एड्रेस आता था, एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट मींस अपना रेफरेंस, और फिर सब्जेक्ट, फिर रेफरेंस उनका किस लिए, फिर वो बोल्ड करते थे. यहाँ पे देखो, आवर रेफरेंस, अपना रेफरेंस यहाँ पे रहेगा, उनका रेफरेंस यहाँ पे रहेगा, वो भी अपने नीचे आएगा. Now this is what our name, our address and all, then date, then our reference and their reference. यहाँ पे आता है रेफरेंस, अपने यहाँ पे यहाँ डालते हैं एडे लोग. By the way, so this is what the letter, and each and every paragraph was containing a free space, a free space, a free space, a free space. All right, one line free space was there. Then I hope this will be satisfactory. A free space line, a free space line, and yours sincerely. यहाँ पे two space रहता था. Yeah, yours sincerely, and this is what the name. अब देखो यहाँ पर आया name. उसने डायरेक्ट सिग्नेचर मारा यहाँ पर. नॉर्मन एडविन का उसने डायरेक्ट सिग्नेचर मार के यहाँ पर उसने मैनेजिंग डायरेक्टर. Getting it? ये कंपनी का लेटर है, कंपनी को समझ में आ रहा है. So this is what called block style. Point number 1. Next one, indented style. Now indented style, I see Mr. Rafiq. Yeah, hi sir. Yeah, hi, hello, hi. Let's get back. So this is what block style in straight line. Anwar bhai, Rahul, block style in straight line, and this is what indented style. See, the address will be going in declining line, then it will be in straight line, and this, see the paragraphs. भूल-भुलैया दिख रही है आप लोग को ये. So it is what indented style. Yeah. So this is what the, for example, again same example लिया उसने. Double dealers, name of the company. वहाँ पे नाम आएगा क्या? अभी मैंने बोला था, नाम आएगा क्या? Your name will be there. क्योंकि खुद का नाम ऐसा अगर आया वहाँ पे नॉर्मन एडविन, तो मतलब कितना चीप लगेगा वो.
कि बाबा मेरे को मैनेजर ने लिखा है, मेरे को मैनेजर ने लिखा है, मैनेजर का मीन्स व्हाट, इट विल लूज द अथॉरिटी, इट विल लूज द अथॉरिटी, मतलब वो आदमी के पास से अथॉरिटी चली जाएगी, वो फिर नॉर्मल आदमी बन जाएगा फिर वो, कि बाबा खुद लेटर लिख रहा है वो. सो दिस इज व्हाट द कंपनी. अभी अनिल अंबानी का कभी आपको नाम आया कैसा रिलायंस कंपनी के ऊपर? मुकेश अंबानी का नाम आया क्या कभी आप लोग को ऐसा कि अंबानी No. लिख रहा है आपको खुद? No. नहीं मिलता है. So you have to just remove the name. So see the address, name of the company, then address is there, and then date, reference, and your reference. Now let me tell you one more thing. Address is in the declining position, and this is in the straight position. Why? नको बता. अर्शी Sorry. ma'am. The ये address is in जो declining position, and the date and your references are in straight position. Why? बिकॉज उसका ऑफ द फॉर्मेट हो स्टाइल, इंडेंटेड स्टाइल है वो, जो ऐसे डिक्लाइनिंग साइड पे आता है, ऐसे हमें मतलब ऐसे सिखाया गया था Actually, टाइपिंग this is क्लास what में. in indented style, it is what only necessary for the address and for your name, for only for या yourself, या not for the others. See, अब उसका जो ओके ये है, उनका जो address, उनका ना जो name है, it will be in the straight line. We can't put it into in declining line. All right. This is only for ये yourself. मिडल में See, होता whatever था. your part is there, you can just get it into a declining part. For example, this is what your part, right? तो आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं. This is not your part. This is neither your part. So this is the date, our reference, and your reference. Okay. Next one will be coming with the, this is what sender's address. Then like this is one receiver's address. Okay. Name of the receiver, that Mrs. G.R. Noakes. Then her address is there. Next, one line space. And again it is what? Greeting. दिख रहा है हमारे यहाँ पे एड़े के ऐसे वहां पे सब्जेक्ट लिखते हैं. Don't write subject over there. Next one. And now this is what indented style, that you have to write the subject in the middle Yeah. of the page. All right, here in the middle. Underline. So repairs to new garage doors. Now again the same thing is there. I am sorry that you are not satisfied with the installation of the new garage doors that was carried out on 22nd September. दिख रहा है? So ये first paragraph. Again one line free space is there, and you have to start from here. You have to leave at least 2-3 word space, 2-3 word space, and then you have to start from here. It is fortunate that accidentally reversed to the into the doors. Again one line free space after the paragraph, and again one line free space. Then I hope this will be satisfactory. And see, this is block style. Everything was on the left hand side, right? Yeah. Everything was on the left hand side. Here it will be on the right hand side, and you Yeah. can just put over here as well, no problem at all. Okay, so you can, if you're writing here as well, so especially here on the right hand side you can write that yours sincerely, faithfully मिलेगा ही नहीं, and yours sincerely के बिल्कुल नीचे आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आ रहा है yours sincerely, फिर यहाँ पे आ रहा है आपका नाम, it will look very very cheap. So this is what indented style. Okay, so yours sincerely, and then your name and your designation. Any doubts to anyone over here? सर Yes. यूएस सिंसियरली लेफ्ट हैंड साइड में आता है ना? बताता हूँ ना आगे कहाँ कहाँ लगने वाला है. राइट हैंड साइड ला येतो. डोंट वरी, यहाँ पे देखो इंटेंडेड स्टाइल के अंदर जो है, देखो ये योर सिंसियरली ब्लॉक स्टाइल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एंड इट विल बी इन द राइट हैंड साइड इंटेंडेड स्टाइल में. ओके. गेटिंग इट? नेक्स्ट वन. एनी डाउट्स टू एनीवन भाई? और किसी कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, जलन कटन सूजन दुखन, किसी का कुछ नाटक है? यस रफीक, एनी डाउट्स? अमर, राहुल, अर्शी, पायल, धनश्री, अरमान? नो सर. So this is what PDF I'm going to share with you. Next one, let's go. Punctuation letters in the how to begin a letter. कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है लेटर कैसे स्टार्ट करूं? होता है ना प्रॉब्लम? कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है कि लेटर स्टार्ट कैसे करना है? पहले होता था, अब नहीं हो रहा. Very good girl. Now, how to begin a letter. As you can see here, we can start a letter. For example, dear sir or dear madam. Dear sir or dear madam. अब उसके यहाँ पे देखो उसने definition भी दिया है. Dear sir, dear madam, either of the above is usual in all business correspondence. बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंदर हम लोग डियर सर डियर मैडम लिख सकते हैं. अब मुझे एक बात बोलो, आप लोग अभी सब तो मेच्योर लोग हैं, सबके पास में मेल होगा, कंपनी के साथ में कुछ ना कुछ टाई अप किया रहेगा. कंपनी जब आपको मेल करती है तो क्या लिखती है उधर? डियर सर डियर मैडम लिखती है कि नहीं? सपोज फॉर एग्जांपल एयरटेल वाले आपको अगर मैसेज कर रहे हैं तो आपको मैसेज में कैसे देते हैं? डियर धनश्री, द एक्साइटिंग ऑफर इज ओनली फॉर यू. या. Yes or no? So this is the formal way. This is absolutely formal way. Dear Anwar,
Reliance is going to give you the hike of 10%. तो वहां पे आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, तूने वो डियर बोला कैसे, मेरी वाइफ है ना उधर मेरे लिए, गेटिंग इट? सो ये डियर सर डियर मैडम इट इज एब्सोल्युटली फुल्ली फॉर्मल. अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे गधे टाइप के लोग हैं, दे थिंक दैट अरे डियर सर डियर मैडम बोले तो बहुत ज्यादा ये अपने बोले बेडरूम तक पहुंच गए बोले अपने ये तो ऐसे टाइप के थर्ड क्लास सोच वाले भी लोग हैं हमारे पास में, सॉरी टू से दिस. So this is what, so please avoid it, okay? So you can say dear sir and dear madam. नहीं literally मेरे साथ में हुआ है. मैंने क्या किया, मैं students लोग को लिखता था पहले dear students, our class shall be there on this and this that. एक दिन क्या हुआ, एक मैडम ने आकर बोले सर आपने dear क्यों लिखे थे, मेरी मम्मा मेरे पे चिढ़ गए. बोले मैडम पहली बात तो आपकी एज देखो, you are 35 and I'm just 19. Point number 1. Second thing is what, you are a student and I am the teacher. You are a student and I am the teacher. Point number 3 is what? Just go and type in the dictionary dear. And what is the exact meaning of dear? Just go and learn it. ऐसे ढक्कन टाइप के भी लोग मेरे पास में आ चुके हैं. So sorry to say this. So just get back to this one. If someone is saying yeah. So dear sir, dear madam, it is normal for the formal business correspondence. Okay? Next one. और अगर आपको कुछ अगर बहुत ज्यादा अगर कोई ऐसे सर फिरा पागल वगैरह दिख रहा है अगर आप लोग को, तो आप लोग उधर डायरेक्टली लिख सकते हैं सर एंड मैडम. डियर बियर गए भाड़ में. अनवर भाई, हाँ सही है. अनवर भाई चाय बन मस्त का बाद में, पहले तेरे ध्यान दो पहले. अनवर भाई हेलो. क्या हेलो? हाँ अनवर भाई देख रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी आज अपने को लव लेटर लिखना है. लव लेटर. रफीक भाई, यस सर. या गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर वाइफ. ओके, नेक्स्ट वन. Now here, sorry. So here is that, now sir or madam we can just write. These are still sometimes used, but more formal than dear sir or dear madam. More formal. So ऐसे गधे लोग के लिए उसने बोला कि गधे लोग के लिए गधा टाइटल लगा सकते हैं आप लोग ऐसा, dear sir और dear madam की जगह पे you can use there sir and madam. And are you seeing there one more thing guys? आप लोगों ने किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, मुझे तो बेचारी पायल भी सो गई दिखता है. कॉमा नहीं, कॉमा जाने दो. This is, I seeing there sir and madam का M capital, sir का S capital. हाँ या. Why? वो रहता है. नॉर्मली लिखना ही पड़ता है क्योंकि मैं अगं गप्प बस ग, नॉर्मली का पण असं का पण नॉर्मली नहीं ग. कायको तो भी. अनवर भाई क्यों? रिस्पेक्ट दे रही है. मॉम का नाम लेने के वक्त एम कैपिटल ही निकालेंगे ना सर. का नाम पता नहीं रहता है. किसी भी स्पेसिफिक लोग को इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो इसमें स्पेसिफिक कहाँ दिखा? सर तो कोई भी हो सकता है ना. नाम नहीं, नाम या इसलिए सर कोई भी हो सकता है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो कैपिटल होता है. कुछ भी. We were not knowing that person. उनकी बात पकड़ के उनको आंसर दिया. ओके अर्शी मैडम, क्या ये नाटक, ये फंडा क्या ये? एक नंबर देने. अर्शी मैडम, actually here S is capital and M is capital for madam and sir. It is, you know why? Because this is the letter and this is the greeting and it is like the title of the person. Yeah. Now let me tell you one more thing. Yeah. देखो यहाँ क्या कुछ भी फेंकते, कुछ भी बोलते, बोले हाँ मैंने भी ऐसी चीज बोली थी, खाली मेरे को बोलने को नहीं आया. समझे नहीं सर तुम्हें? देखो ये टाइटल दिख रहा है आप लोग को. In the title always the first letter will be capital. Yes or no? Yeah. Yeah. मैंने बोला था. हाँ अगर आओ देगा. Conversation formal. Conversation का C and formal का F both will be capital. Yes or no? Yeah. Yes. Good. So here we go. Now how to begin a letter. So you can write there dear sir, dear madam for the formal, and more formal if you want to write. So you can just write there sir and madam. Forget this one. Next dear madam. Next dear sirs. एक से ज़्यादा रहेंगे तो dear sirs and dear madams. So not dear madams. This one. We can say mesdams. Are you getting this? Madams को क्या लिखेंगे हम लोग वहाँ पर? Mesdams. दिख रहा है यहाँ पर? So dear sir, और एक से ज्यादा अगर औरतें रहेंगी महिला मंडल को अगर आप लोग लिख रहे हैं कभी लेटर, तो you can just write there dear mesdams. But वहाँ पे hissing sound नहीं आ रहा है ना? Hissing sound नहीं आ रहा है वहाँ पे, रूल बिल कुछ नहीं है ऐसा. Okay. So dear mesdams, you can write there dear mesdams and dear sirs. Okay. This is in the correct opening when the letter is addressed to
Messrs so and so. Messrs so and so. What do you mean by messrs? Ladies लोग के लिए बोला गया है वहाँ पर. As an alternative, you can say that sirs can be used if the greater formality is required. If the greater formality is required, you can write there sirs. So sirs and mesdames. Sirs and mesdames. Next one, you can write there ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Sometimes still used in instead of number 5. See, dear sir and dear madam लिखा था ना. अब आप लोग कुछ लोग बोल रहे होंगे यार सीधा sirs and madams लिखने से तो ladies and gentlemen use करना चाहिए. Yes or no? Yeah. So अगर आपको यूज करना है informally, so you can write there dear sirs, dear madams, right? और अगर बहुत ज्यादा फॉर्मल जाना है जैसे कि यहाँ पर गया था sir and madam, so you can just write there when you wish to be very very formal or oratorical, so you can write there ladies and gentlemen. What do you mean by oratorical? वही पूछने वाली थी मैं. Oratorical means what? मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट है आप, मतलब यानी थोड़ा सा आप लोग स्ट्रिक्ट होकर बात कर रहे हैं वहां पर, स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट है तब. Note, the letter begins in every above words does not make clear to whom it is addressed. It is therefore imperative that if you want to, in fact, writing the particular person, the name or the title should appear in the address too. Now, see, for example, now, if you're writing to a company or if you're writing normally, so you can just write the dear sir, dear madam, right? For example, let me tell you one more thing. अब अगर आप लोग को पता नहीं है, okay? अभी आप कोई कंपनी को लिख रहे हैं या तो फिर आप लोग कोई फॉर्मली बैंक को लिख रहे हैं या फिर आप लोग कोई कॉलेज को लिख रहे हैं, फिर कोई फर्म को लिख रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डियर सर, डियर मैडम, अगर आप लोग को नाम पता नहीं. बट इफ यू नो पर्सनली देम, सो यू कैन जस्ट राइट देयर. फॉर एग्जांपल, डियर मिस्टर जॉन, डियर मिस्टर जोन्स, डियर मिसेस ब्राउन, डियर मिस स्मिथ, डियर मिस टेलर. So I hope that you know well, when do we use Mr. for a man? When do you Mrs. for a married lady? And when do you Miss for unmarried girl? And when do you Miss whether she's married or not married? Both are for both of them. शादी हुई भी हो सकती है, नहीं भी हुई हो सकती है, सबके लिए यूज होता है. So if you know the person by his name, so you can put that just for the respect. अब देखो यहाँ पे respect, dear respect के लिए नहीं था वहाँ पर, वो title respect के लिए. देखो यहाँ पर dear Mr. John, so we can write the 2 titles, no problem at all. All right, we can write the 2 titles, no problem at all. For example, dear Mr. John, dear Mrs. Brown, dear Miss Smith, and dear Miss Taylor. All right, all the above things, all right, all the above correct when the writers is personally acquainted with the person. मतलब यानी वो उसके साथ में personal उसका relation है कुछ, तो मतलब उसको पहचानता है personally वो, तो वहां पे वो उसको लिख सकता है. ओके, यस, हु इज दिस फैजान? यस, हु इज दिस फैजान? हेलो फैजान? यस, हेलो. यस सर. या हु इज दिस फैजान? मैं सर. कौन मैं? फैजान 913. 9, अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है फैजान 913 पर. आप कहाँ से हैं, कौन है आप? हेलो सर, मैं सैयद सुफियान, मेरे भाई थे. अच्छा सर आज सुबह में लेक्चर है. किसने कहा ये? सॉरी सर, वो मेरे भाई का लेक्चर था अभी, तो लगाने में तो लग गया. अरे यू खालू रतालू. See you. Bye. Cheerio. Yes sir. Cheerio sir. Students कब आ रहे हैं यार? चलो. By the way, so when you are personally known the person, so you can just put there the dear sir and dear madam like this. Sorry, dear sir, dear madam for formal letters. And if you know the person by his name, so you can just put there the title with the names. Okay. Next one. Now, let's avoid the lady's marital status and can be positively established. And see, एक यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा नोट दिया. देखो यहाँ पर, all the above are corrected when you or the writer is personally acquainted with the person receiving the letter or has previous correspondence with them. Okay, अगर आप लोग इन लोग को पहचानते हैं personally, आप लोग उनको जानते हैं, so you can put there the names with the title. MS is, however, best avoided if the lady is marital status can be possibly established. See, इसने क्या बोला है? Best जो है ना सबसे अच्छा, don't write their miss, don't write their misses. The best one is what? Ms. Why? Because Ms. MS, this title is used for married as well as unmarried lady. All right? अगर आप लोग ऐसे जता रहे हो जबरदस्ती कि हाँ तेरी शादी हो गई, अब मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा,
मिसेस अनवर रफीक, समझ में आ रहा है? Yeah. सो यहाँ पे ऐसे जबरदस्ती जताने की जरूरत नहीं है कि बाबा देख तेरी तो शादी हुई नहीं, लड़की है तू, तो यहाँ पे यू कैन जस्ट राइट देयर MS. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डियर जॉन ब्राउन और डियर मैरी स्मिथ. डियर John Brown or Dear Mary Smith. These are the now quite acceptable but rather less formal than the earlier forms of address. Dear John Brown, Dear Mary Smith. अब यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, अभी पूरा नाम डाल रहा है यहाँ पर, नो टाइटल. नो टाइटल. अभी टाइटल क्या था? अभी फॉर एग्जांपल अभी आज आप लोग हैं, मैं आप लोग को एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ. अभी आप लोग कॉलेज में जाते हैं आप लोग के, राइट? तो आप लोग कॉलेज में जाने के बाद में अभी सॉरी आप लोग के टीचर का नाम है डियर प्रशांत, है कि नहीं? डियर मिस्टर प्रशांत. अगर आप उनको इज्जत दे रहे हैं, प्यार से बुला रहे, सो यू कैन राइट देयर डियर मिस्टर प्रशांत. ओके, दिस इज व्हाट, एकदम बहुत इज्जत से. और अगर आप लोग उसको बोल रहे हैं तू भी मेरा दोस्ती चवले काइकट सर वीर है, तो आप लोग डायरेक्टली ऐसा डियर जॉन ब्राउन. ये बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो गया है. मतलब यानी आपका ऐसा है कि बहुत ज्यादा घस्टन है आपके सर के साथ में, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन है आपके सर के साथ में. एट दैट टाइम यू कैन राइट देयर Dear John Brown. These are now quite acceptable but rather less formal than the earlier forms. बहुत ही formal है, मतलब less formal है. ये formal इतना ज़्यादा formal नहीं है. All right? All right? Next one. Dear Tom and Dear My Dear Tom. अभी ज़रा ज़्यादा हो गया ये. Dear Tom, ये था ठीक था. और My Dear Tom, मेरे 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 मेरे. These are used between good friends. पहली बात तो गुड फ्रेंड्स. अगर भाई ने अगर कभी यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, माय लविंग स्टूडेंट्स, खलास उनके पेरेंट्स आ जाने के मेरे घर पे फिर तो. सो दिस इज व्हाट दीज आर बिटवीन गुड फ्रेंड्स इन आइदर पर्सनल और बिजनेस लेटर्स. दीज आर व्हाट बिजनेस लेटर्स और पर्सनल लेटर में भी चलता है. सो माय डियर टॉम एंड माय डियर टॉम. ऑलराइट, नेक्स्ट वन 12 number, now 13 number, my darling Tom or my dearest Mary. These are correct for special cases of affection and should never be used in business context. Now remember this, ये darling, dearest, बहुत मेरे प्यारे से प्यारे, डार्लिंग से डार्लिंग, बहुत ही मेरे लाल के लड्डू, ये आप लोग आपके इसके अंदर नहीं यूज करेंगे. कहाँ पे? फॉर्मल में बिल्कुल भी यूज नहीं होगा. ये केसेस ऑफ अफेक्शन. इनफॉर्मल में होगा. व्हाट डू यू मीन बाय केसेस ऑफ अफेक्शन? लव एंड अफेक्शन. सो लव लेटर्स के अंदर ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, गेटिंग इट, माय डार्लिंग Tom and my dearest Mary. All right, next one. Now how to close a letter. How to close a letter. Guys, any doubts with anyone? Would like to ask any questions regarding this? No. Next, how to close a letter. Please सोना नहीं है, एक भी कोई भी सोएगा नहीं, यहाँ पे ध्यान देते रहो. How to close a letter. You can just say there, yours faithfully. A safe ending for most business letters when the formal dear sir or dear madam has been used at the beginning. अब मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ. आप लोग जो है जो लेटर क्लोज करेंगे उसका पूरा डिपेंडेंट होता है लेटर स्टार्ट करने पर. हाउ डिड यू बिगिन अ लेटर, हाउ डिड यू स्टार्ट अ लेटर. अगर आपने डियर सर डियर मैडम से अगर स्टार्ट किया तो यू कैन जस्ट एंड द लेटर विथ योर्स फेथफुली. लिटरली उसने लिखा है. अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं डियर सर डियर मैडम से तो आप लोग योर्स फेथफुली से एंड कर सकते हैं. और अगर आप लोग ने कभी अगर ऐसा कुछ स्टार्ट किया रहेगा माय डार्लिंग बिल्डिंग से, तो आप लोग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं लास्ट में योर्स लव, योर एवर, योर लव, तुम्हारे लिए सब कुछ, तुमसे साठी कायपन, योर्स एवर, योर लव, और लव, क्लोज लव, गेटिंग इट. सो पार्किंग का लव, झाड़ के पीछे लव, तो ये सब पूरा आप लोग वहां पे जैसे दिल बोलते हैं आप लोग वैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू. सो इट डिपेंड्स एस्पेशली ऑन योर बिगिनिंग ऑफ द लेटर. रफीक भाई समझ में आया? Yes sir. या राहुल, अरमान, अनवर. सो जैसे लेटर स्टार्ट करेंगे वैसे लेटर को एंड करना पड़ेगा. अर्शी मैडम समझ में आ रहा है? हेलो मैडम, समझ में आ रहा है आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ? मैडम ब्रेकफास्ट बाद में करो. Also add obediently. पर कोई नूर का बन मस का भाग जाएगा. मैडम यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो. अब वो ओबीडियंटली आगे आएगा ना, वो देखो यहाँ पे है ना योर ओबीडियंट सर्वेंट. Actually, some network issue I have, that's why. Okay. By the way, have a look here. Next one. Now, see, मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है. Yours sincerely
and yours very sincerely. ये ज़रा ज़्यादा हो गया, but I write this one. Yours sincerely. See, when do we write this one? Yours sincerely. Correct for more friendly business letters written to someone addressed by name, such as Dear Mr. Smith. अभी हम लोग ने क्या किया था? सिर्फ अगर हम लोग ने start किया Dear Madam, Dear Sir, so you can just end there. Yours faithfully. But if you are starting the letter with Dear Mr. Smith, with the title, with the name, by name of the person, at the time you can just write there yours sincerely. For business letters as well as informal letters as well, so you can just write there yours sincerely. मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ मैं आपकी. All right, yours sincerely, yours very very sincerely. So this is what yours sincerely, you're very sincerely. If you have started the letter with Dear Mr. Smith. Next one, yours sincerely or best wishes, a safe ending for all personal letters and business letters where the correspondents are all well known to one another. अब देखो मैं क्यों लिखता हूँ मालूम है मेरे लेटर्स के अंदर योर सिंसियरली, बिकॉज इट इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल लेटर, दोनों लेटर्स के अंदर यूज होता है. फॉर एग्जांपल योर सिंसियरली और बेस्ट विशेस, वेल नोन टू वन अनदर. स्पेशली कब लिखेंगे हम लोग ये योर सिंसियरली और बेस्ट विशेस, well known to one another for business letters or for personal letters as well. Personal letters and as well as business letters के लिए हम लोग use कर सकते हैं yours sincerely. Next one, your affectionately. This is what suitable for relations. ये lovable है and affectionately would be relations in between girlfriends and but now usually replaced by number 3. Number 3 means what? Yours sincerely. So अगर आप लोग को कोई अगर friends वगैरह हैं, so you affectionately थोड़ा सा प्यार वगैरह दिखा रहे हैं आप लोग उधर, so at that time you can just say there you affectionately. Okay, next one. Now faithfully, yours faithfully yours or yours faithfully, sincerely yours or yours sincerely, both are right. Okay, now this is your faithfully and sincerely, it is what like number 4 and number 3. This is what number 3 and number 4. Yours sincerely अपनो personal business matters के लिए use कर देते हैं. Yours faithfully also we can use there for business and personal matters. Okay, the words can be reversed through the result in slightly pompous. अगर आप लोग जरा ज्यादा कुछ अगर एड़े चाले अगर कर रहे होंगे तो उसका इफेक्ट अलग पड़ सकता है. All right, next one, your respectfully used in long letters, that is in the form of a report. In the other cases, it should be used rarely since it can seem servile. Now, what do you mean by it can seem servile? अब आपका कोई अगर लॉन्ग लेटर है, कोई बड़ा बिजनेस लेटर है अगर आपका है, ऐसा कोई फॉर्मल लेटर है आप लोगों का, कोई बिजनेस टाइप का लेटर है जो कि लॉन्ग लेटर है एकदम, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर जिसको अगर आपने कुछ बहुत कुछ बोला है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव रिटन लेटर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉस को, मतलब जो ये है साहब है उसका, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है उसको आप लोगों ने लिखा लेटर. ओके, इन दैट लेटर यू कैन ऐड देयर एट द एंड your respectfully. You can add there your respectfully while writing the long letters. Okay, if you have written long letters, so you can add there yours respectfully. I'm so happy guys, I'm so happy, I'm very very happy, I'm very very happy guys. I'm really sorry मैं बहुत ज़्यादा excitement में हूँ, I'm in ecstasy. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. I'm so happy. By the way, मेरा पूरा सर का टेंशन उतर गया. I'm so thankful of the God. Yesterday, you know what happened? The day before yesterday, guys, थोड़ा सुन के लो. मेरा बोलो ना. खुशी कुछ जरा ज्यादा आसमान पे चढ़ गया है. What I did the day before yesterday, at night, I wanted to transfer money from one bank to another bank, and don't know what the hell happened with me. And it was a cash of 50,000. And what I transferred, I didn't got the entry in my passbook in my bank account anywhere. मैं बोला my God help, मर गया भी मैं. And I didn't inform even my parents. And I was just in tension for 2 days. Now that amount has been credited into my account once again. Bullshit, क्योंकि मेरा पैसा था नहीं, वो अंकल का पैसा था. Thank you so. करके तो वो पायल सुबह पूछ रही थी क्या हुआ 4 दिन की जिंदगी. पायल 4 दिन की नहीं 2 दिन की हो गई होती, 2 कट हो गए थे उसके अंदर से मेरे. By the way, I'm so thankful. हाँ, सुबह सुबह आपका मूड बहुत ऐसा आउट हो गया था, अच्छा नहीं था. हाँ. By the way, let's go guys. So you are respectfully for long letters. By the way, don't worry. मुझे लगा कुछ अब मेरा आपका मूड चेंज हो गया. नहीं बोल रहे हो. No, don't worry. मेरा अभी मूड चेंज हो गया. मुझे लगा कुछ नया होगा. देता हूँ ना नया आप लोग को. See, इस खुशी के मौके पर आज आप लोग को सबको मिलेगा एक गिफ्ट में बुक. ओके, वोकैबुलरी का वो भी. वाओ. इतना जबरदस्त बुक दूंगा आप लोगों को. आप लोग बोलेंगे oh my God, love it. How the great book it is. Okay,
आप लोग गिफ्ट थोड़ी देर में मिल जाएगा आप लोग के इस पे सत्ता मेरे लिए सिर्फ वो साऊंड का रेकॉर्डिंग दे दो बस. अरे अगं मैत्रीण तुम्ही मला मेसेज का नाही केला सगळ्यांना पाठवलं असतं तर मैं इतना मला दोघींचं नाही टेन्शन उई, पाठवला. शपथ मी मेसेज केलेला आहे. मी नंतर सर म्हणून परत रिप्लाय पण केला कारण की मला माहिती होतं तुम्ही विसरणार. सॉरी आज परत व्हॉट्सअप ओपन करा आणि बघा केलाय का नाही. मला पण जरूर सबको सेंड करूंगा सबको आप मिलेगा मैसेज सबको पढ़ते हो नहीं, मैं लाइन जानती हूँ आप बहुत लाइन में बिजी रुको हो. लाइन में रुको सबको मिलेगा बाय द वे आई एम सो सॉरी आज सो देंगे ना पक्का. या पायल हात पुढे कर आणि थांब लाईन मध्ये. You're respectfully. Okay, guys, have a look here once again. You're respectfully for long letters we can write this. Okay. Next one. Your obedient servant. अभी जरा देखो ये कौन सा टाइप का ये fully official letters. Okay. Only used in certain official letters. Now, for example, your obedient servant. ये कब लिखेंगे आप लोग? When I'm going to write this one, your obedient letter. Sorry, your obedient servant. जो एम्प्लॉय होगा वो ऑफिस का वो Exactly. लिखा जाएगा. Now let me tell you one more thing. अगर आप बहुत सीनियर मतलब बहुत ही जूनियर अगर आप लोग एम्प्लॉय है या फिर आपके घर का कोई अगर कोई ये है नौकर वगैरह है अगर वो आपको लिख रहा है अगर लेटर तो एट द टाइम ही कैन राइट देयर योर ओबीडिएंट सर्वेंट्स ओनली यूज्ड इन सर्टेन ऑफिशियल लेटर्स. कुछ ऑफिशियल लेटर्स में यूज होता है अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली इनफॉर्मल एंड रिलेटेड लेटर्स. ओके. नेक्स्ट योर्स एवर और लव इट इज यूज्ड ओनली व्हेन द राइटिंग यू आर टू अ क्लोज फ्रेंड. ओके. आप लोग जब कोई क्लोज फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो आप लोग वहां पर ये लिख सकते हैं योर लव योर लव्स एवर योर्स एवर एटसेट्रा. phrases for beginning letters. Okay. अब आप लोग को letter start कैसे करना है? So you can just start like for example, if you're looking for a phrase to start your letter, one of the following will probably suit your purpose. For example, I'm very grateful for, in reply to your letter of, it was kind of you to. Now, for example, I'm sorry to tell you, it is so long since you wrote. I'm wondering if you could, as requested. Thank you. I enclose. Please. Next, thank you for your letter of. I'm sorry to inform you that. अब हम लोग देखो आप लोगों को आया रहेगा देखो ऐसा लेटर. I'm sorry to inform you that Mr. Peter, the chairman of Rothschild, has been passed away. Last night he was suffering from corona and he has been taken his last breath and his last words were what? Please pay my debt. Okay. I'm sorry to inform you. Next, I greatly appreciate your great appearance in my class, that you have came on time today and waited for me. Thank you so much. With reference to your letter of, referring to your letter of. Next, I'm anxious to hear from you concerning about my offering to the new job. Next one, you may be interested to hear that you have been shortlisted for the gift of vocabulary book which you'll get after this class. We wish to remind you that you have to pay the fee because see, today is what 17th of August and see, second month of our class has been completed and we wish to remind you that you have to pay the fee as soon as possible, otherwise you will be out of the class. Are you getting that? Sentence kaisa match ho raha hai? Yeah. Hello, are you getting how to start a letter? So these are the phrases to start a letter. Let's go for the next one. Now we are starting the letters directly. How many of you are now enchanted with this one? Hello, are you listening me all? अगर Yes, आंसर sir. नहीं दिया तो मैं Yeah, मीटिंग एंड कर दूंगा. एक पूछू. हाँ, sure. May I ask you? Rahul is not answering It me. is- Arman is not answering me. Anwar is not answering me. Yes. Yeah, you are Okay. live. By है meeting में है. Yes, Dhanashri, please ask. It is necessary to enclose the letter. Absolutely. अगर आप लोगों ने लेटर ऐसे करके छोड़ दिया तो enclose अगर नहीं किया उसको तो फिर आपने मतलब लेटर कहाँ से रहेगा फिर वो? What तो we time have pass. to mention in that enclosure? एनक्लोजर के अंदर भी आप देखो आपको मैं आगे बताता हूँ एनक्लोजर में आपको लिखना क्या है. एनक्लोजर में आगे बहुत सारी चीजें आएंगी अलग अलग लेटर का अलग अलग वैसे एनक्लोजर होता है सबका. फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ लेटर्स में ऐसा होता है क्या? नहीं एंक्लोजर इनफॉर्मली नहीं होता है. इनफॉर्मल लेटर्स वी हैव टू एनक्लोज जनरली नॉट इनफॉर्मल लेटर्स. मीन्स बताता हूँ देखो. जो हाँ कंपनी का रहता है उसमें सिर्फ रेफरेंस नंबर डाल देना है. एग्जैक्टली इनक्लोज करते टाइम पे आप लोग को करना क्या है. See, now it is what you can enclose with the letter with like for example your references, your CVs, then the line will be there, then hereby, then confirmation will be there. So you can just enclose the letter like that. Document and attachment. Yeah, exactly. It is the same, but it is only for formal letters. Informal letters के अंदर enclosure नहीं आते generally. Okay. By the way, are you seeing the letter on your screen, all of you? Yes. A letter is there. Letter announcing engagement. अभी जैसे हमारे राहुल का engagement है. Okay. अब राहुल का एंगेजमेंट है अभी सब क्लास वालों को पार्टी दे रहा है वो इनफॉर्मली. तो वहां पे राहुल ने लिखा कैसे
प्लीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दीज आर द न्यू लेटर्स। यहाँ पे से अब तक के जो आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया था कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। ओके, नाउ while starting the letter, point number 1, this is what sender's address. Okay, this is the sender's address. रिसीवर का एड्रेस लिखना जरूरी है कि इनफॉर्मल लेटर में? नहीं नॉट एट ऑल, बिकॉज अपने को मालूम है ना कि बाबा हाँ ये कहाँ पे रहता है, ये काशीवाड़ी की कौन सी गली के अंदर रहता है कि नहीं, बालाजी नगर की कौन सी गली में रहता है, सब अपने को सब मालूम है। सो वी डोंट हैव टू ऐड द रिसीवर्स एड्रेस। सेकंड थिंग, हैव लुक हियर नाउ, अभी लेटर किसकी तरफ से आया है? राहुल की तरफ से आया है। ऑलराइट, हेलो, अभी लेटर राहुल की तरफ से आया, तो राहुल अपना नाम लिखते इधर लिखते बैठेगा कि राहुल? नहीं। हेलो, नॉट एट ऑल, नहीं। बिकॉज हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि बाबा एंगेजमेंट सबकी थोड़ी रहती है, ऐसे 50-60 लोगों ने एक साथ में भेजेंगे कि आप लोग को? नॉट एट ऑल। सो पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट, यू हैव टू स्किप द नेम। आप लोग को डायरेक्टली एड्रेस स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल 21 ब्रम लेन, रिंगवे, समर स्ट्रीट, देन PSS 940J। सेकंड थिंग, आर देयर कॉमास? गाइस, आर देयर कॉमास? नो। लगाया मैंने कॉमा, हाईलाइट भी किया हूं, देखो कॉमा नहीं है, कॉमा नहीं, कॉमा नहीं, कॉमा, नो कॉमास आ रहे। सो कॉमा लगाना नहीं है। मार्क्स काटूंगी, तो ये अपने स्कूल में था, यहाँ पे नहीं चलने वाला अभी ये। सेम केस, नेक्स्ट वन इज व्हाट, डियर आंटी। पहले अपने सासू माँ को भेज रहा है हमारा राहुल, डियर आंटी, आधी तुम्ही या तुमची मुली लगी होऊन कशामध्ये, Aunt एंगेजमेंट बोलते हैं मध्ये। ना? सो डियर आंटी, मैडम बहुत इनफॉर्मल बोल रहा है ना वो, फुल्ली इनफॉर्मल है। आंट जो है बहुत फॉर्मल है, एंड आंटी इज व्हाट, वेरी वेरी इनफॉर्मल। सो डियर का D एंड आंटी का A। आंटी का A भी कैपिटल होगा, क्यों? बिकॉज इट्स अ टाइटल। यस और नो? ये टाइटल Yeah. केस में आने वाला है। एक्चुअली आंटी इज व्हाट, कॉमन नाउन है ना? Yeah. Auntie is a common noun, but here it is not in the title case. That's why we have to put the dear D and auntie A, all are capital, and there is no comma again. मैंने comma के लिए देखो highlight करके लिखा हूँ, पिल्ला पिल्ला। So this is what, no, Focus मार रहा है। yeah, focus मार रहा है, दूर से focus मार रहा है। Sorry. So this is what, no comma. Okay, next one. अब यहाँ पर देखो ये क्या किया इसने, लिखा है यहाँ पर subject. I simply had to write to tell you the most marvelous news. Robert and I are engaged. Oh my god. Oh my god. Yeah. So Robert and I got engaged. At the end, there's an exclamation mark. दिख रहा है रफीक भाई? Yes. अर्शी मैडम दिख रहा है? So this is what, at the end there is an exclamation mark. Next one, the wedding is going to be quite soon, and of course we'll be sending you an invitation when we've got the time and the place sorted out. शॉर्टकट फटाफट, उसके बीच में कुछ भी डालना नहीं। तुम्हारा कुत्ता कैसे है, तुम कैसे है, बिल्ली कैसे है, परसों दिन किचन में फेंक के मारे थे प्लेट, वो कैसी टूटी कि नहीं, वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं फोन पे बहुत कुछ सुना था मैंने। नथिंग, यू हैव टू जस्ट राइट द हिट टू द पॉइंट, डायरेक्टली हिट करना है पॉइंट के ऊपर। दिख रहा है आप लोगों को? अपने यहाँ पे क्या करते थे, आपका लेटर मिला, बहुत दुख में था, बारिश में भीग रहा था बाहर, उसमें बैठ के, हाँ दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तुम्हारी याद आ रही थी, गाने सुन रहा था रफी के, ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था। एक्सटेंड करना है Nothing लेटर at को। all. Yes? एक्सटेंड करना है, बहुत करना है, उसमें बहुत भरना है। हाँ, ये अपने तीन अपने यहाँ पे तीन बोलते चार थे। चार पैराग्राफ ऐसे बहुत भर के 2 Now my पेज का question, लेटर yeah, लिखना है। exactly right. Now let me ask question to Mr. Rafiq and Mr. Anwar, because both of them they are working in the company. Please unmute yourself, both of you, and answer me. Rafiq bhai, Anwar bhai. My question is there to both of you. Did you find any letter from your boss? Have you got any letter from your boss? Not letter, by Gmail. Yes. Repeat once again, sir. By mail. ओके, बाय मेल। हाँ वही मेल की बात कर रहा हूँ। अभी आज के जमाने में लेटर कौन लिखता है, मेल ही लिखता है। तो अपने को ये सब मेल के लिए कंसर्न करना है, ठीक है? ये सब मेल के हिसाब से लिखना है हम लोगों को। मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं? जस्ट अ मिनट, बिकॉज ये दोनों बहुत साल से कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं लोग, इसके लिए पूछ रहा हूं मैं। या श्योर। ओके, या रफीक भाई। हाँ, तो Yes, अनवर भाई, हाउ वाज द daily लेटर? we used to get the mails from the our managers. Okay, so how is the, can you please tell us how is the mail? Is it longer? No, No, it's just very very long, short, 3 to 4 very lines, short 3 to 4 emails. line. वेरी गुड। अनवर भाई कैसा था वो? 3 to 4 line was just. दैट्स इट गाइस, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, मैंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस लोगों को से बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दैट ओनली 3 to 4 लाइन लेटर इज देयर, नथिंग मच। उसके अंदर कुछ भी नहीं है। भाई रफीक भाई, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? अनवर भाई, तुम्हारी सास कैसी है जो परसों गिरी थी, उसके पैर वगैरह कैसे लगा था कि पैर पे ये हुआ था कि वो हुआ था। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको लिख रहा हूँ लेटर कि आपने जो परसों के दिन क्लस्टर खड़ा किए थे, वो आप जो क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो 3-4 नोड आपने उड़ा दी, सॉरी, प्लीज जल्दी करके दो।
ऐसा कुछ था क्या उसके अंदर? Nothing. Only 3 to 4 line letter is there. That's it. Hit पर करना है directly point के ऊपर. Advanced डाले कुछ भी करना नहीं है. This is what the same in informal letters as well. All the business letters are very 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 short. So this is what, see, लोगों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा. If you're writing in the same way, means it will be a very good letter. अगर आप लोग जबरदस्ती भर रहे हो उसको, so it will be like, अरे यार कौन पढ़ेगा? To hell with this. Okay. So this is the problem. He Yeah. he used to write only yeah, hi Rafiq, good morning. Yeah. Could you please look into this and try to archive this by EOD today? That's it. Exactly. I'm agree with you, gentlemen. I'm agree with you. Means what? One greeting will be there, hi Rafiq, or greeting of the Rafiq means like dear Rafiq and all. Then he is writing directly, stick to the point. Directly कम क्या करना है? भाड़ में गई बाकी का जो भी ना, love you, BBU सब देखे लेंगे अपने कैंटीन के अंदर. बाकी कुछ नहीं हुआ here. Next one. So the wedding is going to be soon. One, paragraph 2. Next, I do hope you will be able to come. बंदे लोग कुछ याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया था. आप लोग कुछ याद आ रहा है? I do hope you'll be able to come. मतलब I do hope. मुझे ऐसा लगता है कि आप आना चाहिए. मतलब नहीं, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ. मतलब यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा है. मैंने आप लोगों को याद आ रहा है उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को कुछ. फॉर एग्जांपल आप लोगों को डू का मैं पढ़ा रहा था लेक्चर. या डू का. अर्शी मैडम ने पूछा था डू के बारे में, तो मैंने बोला था वहाँ पे हम लोग डू डबल वर्ब लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई डू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं खेलता ही हूँ, मतलब स्ट्रेस है वहाँ पर. आई डू प्ले, आई डू गो देयर, आई डू मिस इट. अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल झगड़े चल रहे हैं किसके अंदर? अरमान में और अरमान की गर्लफ्रेंड में, जो काम वाली बाई है. अब दोनों के अंदर चल रहे झगड़े. तू मला प्रेम करत नाही, तू मला प्रेम करत नाही. तो वहाँ पे अरमान ने क्या किया? गुस्से में आके प्लेट फोन वगैरह तोड़ दिया. और अरमान क्या बोला वहाँ पर? अरे आई डू लव यू. गेटिंग इट? I do मतलब मैं करता हूँ. yes, so this is what again उसने प्रेशर दिया यहाँ पर. I do hope you'll be able to come. love, Marjorie, love. so this is what informal letter है. आंटी को love भी लिख के भेज रहे हैं. आंटी याद से और गिफ्ट लेके याद से गिरेंगे, बिना गिफ्ट के आना नहीं एंगेजमेंट में. नेक्स्ट वन. नाउ लेटर फॉर थैंक्स फॉर अ प्रेजेंट. अडल्ट्स. अब कोई बड़ा बंदा है जो कि प्रेजेंट लेने के बाद में थैंक यू बोल रहा है, तो कैसे बोलेगा वो? his address. Okay, same, his address, no comma, no prima, कुछ भी नहीं आएगा उधर. Then date will be there. Next, dear William, thank you very much for your letter and the beautiful silk scarf. अब यहाँ पे क्या कर रही है वो देखो औरत, उसको सिल्क स्कार्फ दिया किसने? विलियम ने. तो विलियम को बोले डियर विलियम. पहले देखो उसने इनफॉर्मल लेटर है, वो अडल्ट है, उसने प्रेजेंट रिसीव की, उसको लिख रही लेटर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर एंड द ब्यूटीफुल सिल्क स्कार्फ. They arrived just in time for Christmas. Green one is of one of my favorite colors, so you may rest assured that I will make good use of the scarf. मैं आपके लिए पेन के बराबर गार्डन में पहुंचूंगी. I do hope that you will able to come home for Christmas next year. You know I like to keep in touch with all my nephews and it would be so nice to see you soon again. Okay? It would be nice to see you again. It would be nice to see you soon. Shh. It would be nice to be with you again. Love, Auntie Jane. Love, Auntie Jane. अब ये एक्चुअली ये जो लड़का है शायद हो सकता है ये कोई तो रहेगा उसका पहचान वाला, भतीजा रहेगा उसका. सो उसने वहाँ पे लिखी तुम्हारी प्यारी आंटी. सो लव फ्रॉम योर प्यारी आंटी जेन. वो बच्चे ने, वो लड़के ने क्या किया, वो बंदे ने उसको गिफ्ट किया था स्कार्फ वगैरह आंटी को. और अब वो आंटी क्या कर रही है, उसको थैंक यू बोल रही है बाय द लेटर. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट, नाउ रिसीविंग द प्रेजेंट ऑफ अ चाइल्ड. अभी एक चाइल्ड है, कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, उसने प्रेजेंट रिसीव किया और वो लिख रहा है लेटर. फॉर एग्जांपल अगेन सेंडर्स एड्रेस इज देयर विद द डेट. डियर अंकल जॉर्ज. अब बोलते हैं ना मेरे प्यारे अंकल जॉर्ज. सो दिस इज व्हाट डियर अंकल जॉर्ज. सो वहाँ पे बंदा लिख रहा है, बच्चा जो है ना, वो छोटा बच्चा लिख रहा है वहाँ पर लेटर टू द अंकल. थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी द शर्लॉक होम्स बुक फॉर माय बर्थडे प्रेजेंट. मम्मी एंड डैडी bought me a watch and I got this lots of the other presents, but yours is one of the nicest and I'm really enjoying to read it. अब यहाँ पे बच्चा बोलता है ना, मेरे को उन लोगों ने भी ये लेके आए, उन लोगों ने बोले मेरे को चाची ने ये लेके आए, उसने बोला चाचा ने ये लेके आए, तुमने ये मेरे को दिया, मेरे को सबसे भारी तुम्हारा लगा. वाह, थैंक यू सो मच. So this is what mummy and daddy bought. Yeah, mummy and daddy bought me a watch and I got lots of the other presents, but yours is one of the nicest. I'm really enjoying to read it. Love, James. Are you getting this? So this is the
boy who is receiving the gift from the uncle and thanking him. All right. See, अब यहाँ पे मुझे आप लोग को एक और चीज बताना है. यहाँ पर आंटी ने, जेन आंटी ने क्या किया, उस स्कार्फ मिला उसको, राइट? क्या वहां पे वो आंटी ने थैंकिंग यू बोला? नहीं, लव. यहाँ पे वो बंदे ने, बच्चे ने बोला है थैंकिंग यू? नो, लव नो, बोला। नॉट एट ऑल. उसने बोला है लव. मीन्स व्हाट? प्यारे अंकल. सो दिस इज व्हाट, वहां पे उसने ऐड ही नहीं किया है. वो बंदे ने उधर वहां पे थैंकिंग यू पिंकिंग यू ऐड नहीं किया है, वो सब खाली अपने लिए था. नेक्स्ट वन. Now again a formal letter is there. Application for position of as a secretary and typist. अभी आप लोगों को कोई चीज के लिए एप्लीकेशन डालना है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर अनवर है, मिस्टर रफीक है, धनश्री है, आप लोग कभी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, राइट? और आप लोग को पोजीशन के लिए अप्लाई करना है एज अ सेक्रेटरी, एज अ टाइपिस्ट. तो हो सकता है, ये तो खाली मैंने एग्जांपल दिया सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट का, आप लोग आपके इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें. फॉर एग्जांपल आई एम एन इंजीनियर एंड आई वांट टू अप्लाई. अगेन इफ यू सी हियर सेंडर्स एड्रेस, एनी डाउट्स? नो नेम. बंदो, नेम आएगा क्या? No. No name, and see address is there without comma. No comma, Pima is there. Next, 10 July 2019. Next, here, Crumb and Cake Limited. Crumb and Cake Limited, ये company है, company का नाम आएगा. Then address will be there. Next one. See here, guys, leave one line free space. Dear sir, अब उसको अपने को मांगता जॉब. अपने को जॉब चाहिए ना? Hello guys, अपने को जॉब Yes. चाहिए ना? तो जॉब Yeah. चाहिए तो वहां पे मस्का लगाना पड़ेगा. मस्का लगाने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? डियर सर, ये नया कंपनी है, इधर नाम भी लिखना नहीं, डियर पटेल बिटेल लिखना नहीं. क्यों भाई? क्योंकि नया है मामला, तो नाजुक है. सो डियर सर, प्यार से मस्का लगा के. नेक्स्ट वन, डायरेक्टली द सब्जेक्ट. आई एम राइटिंग इन आंसर टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दिस वीक्स कार्टून कर्नल फॉर सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट पोजीशन. ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको ये लेटर, क्योंकि मैंने आप लोग का एडवर्टाइजमेंट देखा था और वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मुझे आप लोग का ये मिला, सेक्रेटरी और टाइपिस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ. नेक्स्ट वन. अब देखो यहाँ पे ये बंदे ने क्या किया, 4 पैराग्राफ्स दिया है, वो भी छोटे छोटे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम 21 years old and was educated at Mallow Comprehensive where I obtained CSE presses in English language, French, mathematics, domestic science and typing. पॉइंट नंबर 1, इससे क्या सबक मिलने को आप लोग को सीखने को मिला लेटर के अंदर पहला पैराग्राफ देखकर? Who will tell me? उसने उसका क्वालिफिकेशन और उसका टेक्निकल बोल दिया. मीन्स उसको Okay, जिसमें स्कोप okay, है, okay, स्कोप okay, है उसका टाइपिंग में. ओके ओके. और कौन बताएगा भाई पहले पैराग्राफ से क्या सीखने मिला हम लोग को? क्या मिल रहा है मतलब वहां से रेफरेंस? टू द Yes. पॉइंट बोला है उसने. ओके. और आपको पता है, दिख रहा है आप लोग को? प्रोफेशन बताया है उसका. नहीं, सिंपल सी बात. उसने देखो काय के लिए लिख रहा है वो लेटर, वो सेक्रेटरी और टाइपिस्ट के लिए लिख रहा है. मतलब यानी लिटरली उसने हिट किया है वहां पर. ना उसका नाम बताया, ना उसने कुछ बताया. उसने सबसे पहले फोकस किस बात पे किया है? अपने काम पे किया है कि मैं क्या हूँ. आई एम 21 years old. उसने उसका नाम बताया अभी तक कि कौन है वो? No. ना स्टार्टिंग में उसका नाम आया है, ना यहाँ पे उसका नाम आया है, ना कहीं पे उसका नाम आया है. कहीं पे भी उसका नाम आया नहीं है. और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसने क्या किया, डायरेक्टली उसके काम के बारे में बताया है. दैट आई एम एजुकेटेड, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मैंने ये टाइपिंग का क्लास किया. मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सबसे पहले मैं फिक्स होता हूँ. मेरा नाम माइकल जैक्सन है और मैं डांस करता हूँ, पिंस करता हूँ. कुछ नहीं लिखा उसने, कुछ नहीं लिखा. आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. अगर आप लोग कोई चीज खरीदने के लिए आप लोग जा रहे हैं मार्केट में, राइट? इफ यू आर गोइंग टू बाय एनीथिंग इन द मार्केट, तो शॉप वाला आपको उसका नाम बताते बैठता है कि पहले? No. नॉट एट ऑल. वो आपको उसका नाम क्यों बताएगा? वो तो डायरेक्टली आपको वो चीज बताएगा जो आपको चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर बाइंग अ बेल. आपको एक बेल खरीदना है तो वो आपको क्या बताएगा? डायरेक्ट बेल बताएगा. सर ये बेल ऐसी है, ये कैमरा ऐसा है, ये कैमरा ऐसा है, इसका ये प्राइस है, ये प्राइस है. लाइक वो काम खुद से काम रखना. एग्जैक्टली वो आपको क्यों बताएगा कि पापा उसका काम क्या, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्यों रहता है, काय के लिए रहता है, क्या प्रॉब्लम है उसका, डिवोर्स हुआ है कि शादी हुई है कि क्या है, वो नहीं बताएगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल. नेक्स्ट वन. सो फर्स्ट वन उसने अपने एजुकेशन के बारे में बताया है. नेक्स्ट वन. For the past 2 years, I've been working in the personnel department of J. Jones and Sons as a junior shorthand typist. My speed is 100. क्या ये 100 word per minute for Yes. shorthand and 60 per word WPMS. per minute for typing. So this is what the speed वो बता रहा है अपनी. तो वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. पॉइंट नंबर 1 लिख के ले लो रे चाहिए तो. पॉइंट नंबर 1 क्वालिफिकेशन उसने बताया. नंबर 2 पैराग्राफ के अंदर उसने एक्सपीरियंस बताया. लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस बताया नहीं. नेक्स्ट वन. Although I enjoy my present job,
I am keen to broaden my experience and to find post with the title more responsibility. ओके अब उसने क्या बताया, उसकी नीड बताया. अभी हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले सबसे पहले बेकारी कैसा ऐसा अपना हाथ आगे लेते, सर आई का नजर वाले, हे मेरे को ना देखो, मेरे को ना एक जॉब मांगता था ये, आई एम एंजॉइंग मीन्स व्हाट, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. बुलशिट. दिस इज व्हाट उसने पहले उसको क्या किया है, क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट एक्सपीरियंस, एंड नाउ the person is asking for the job. And see उसको जॉब मांगने का तरीका भी कैसा है, although I enjoy my present job, ऐसा नहीं कि मैं एकदम बहुत भिखारी हूँ, मेरे को प्रेजेंट जॉब भी बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम कीन टू ब्रॉडन माई एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसको ब्रॉड करूँ, उसको बढ़ाऊँ, उसको करूँ, एंड टू फाइंड अ पोस्ट विद लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं ऐसी पोस्ट ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर मुझे थोड़ी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, जिसकी वजह से मैं काम अच्छा कर सकूंगा. माई डिपार्टमेंटल मैनेजर मिस्टर ब्रायन लेवल has agreed to give me time off to come for an interview for any afternoon other than Thursdays, and is also willing to write a reference. और मैं रेफरेंस भी आपको देना चाहता हूँ. उसने उसके अंदर रेफरेंस दिया नहीं, बट रेफरेंस उसका मैनेजर का डाल सकता था वो. एंड एट द एंड देखो उसने कैसे एंड किया, योर्स फेथफुली सुजैन ब्राउन. लास्ट में मालूम पड़ रहा है वो बंदे का नाम क्या है, सुजैन ब्राउन. समझ, एक्चुअली बंदी है वो. पूरे लेटर के अंदर उसके अंदर कहीं आपको उसका नाम मिला, कहीं भी उसकी तारीफ मिली, कुछ नहीं. सो लिटरली एकदम हिट किया उसने पॉइंट के, उसके मेन पॉइंट के ऊपर. दिख रहा है आप लोगों को? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? Not at all. नेक्स्ट वन. नाउ अभी आप लोग को बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है, एक्सेप्टिंग एन ऑफर फॉर और ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते ना, देखो अभी ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, कितना लिखा है उसने, हार्डली उसने 4 लाइंस लिखा है, हार्डली 4 लाइंस, दैट्स इट. सी एक्सेप्टिंग द लेक्चर, sender's address without comma with date, receiver's address without comma, next reference number उन लोग का, dear Mrs. Burns. अब ये क्या है, आप लोग उसका एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसकी HR को आप लोग लिख रहे हैं, dear Mr. Burns, thank you for your letter of 12th October offering me the post of ledger clerk with your organization. I am delighted to accept the position and look forward to starting work with you on 15th November. Thank you. That's it. नो थैंकिंग यू, नो पिंकिंग यू, उसके पैरों में नहीं पड़ना, पैरों में गिरना नहीं, कुछ नहीं करना. योर सिंसियरली जेन एलन. सुपर एंड शॉर्ट, वेरी स्वीट. कितने लोगों को लग रहा है ये एकदम अमेजिंग है? मस्त है. मैंने मीन्स कोई तो करता भी नहीं है, ऑफर लेटर के बाद मेल भी नहीं करता है या कोई तो मैं बोलना चाह लेटर रहा भी हूँ. नहीं भेजता है. एग्जैक्टली. मिस्टर रफीक, आपने अभी लेटर दिया क्या उनको, मतलब मेल किया आप लोगों ने, आपने उनको? कोई नहीं भेजता है, बट फर्स्ट इसलिए टाइम इनको ये बहुत ही अमेजिंग है एंड बहुत ही अच्छा है. So this is what short and sweet. मतलब उसने क्या किया, पहले उसको थैंक यू बोला इन द फर्स्ट लेटर, इन द फर्स्ट लाइन, मींस फर्स्ट पैराग्राफ में उसने थैंक यू बोला है. आई एम डिलाइटेड टू कीप अ पोजीशन फॉर लुक फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग वर्क विद यू ऑन 15th ऑफ, और दूसरा उसने कंफर्म किया कि मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ 15th नवंबर से. गेटिंग इट? सो 1 मंथ का पीरियड टाइम था उसका, नोटिस पीरियड था. उसके बाद में योर सिंसियरली एंड जेन ऑलप. यस सर, ये जरूरी होता है क्या? नहीं, सी अब देखो ये क्या है, अभी कोई आपको ऐसा पूछेगा नहीं कि बाबा आप हमको लेटर लिख के दो, लेटर बट जरूरी नहीं, बट आप लोग को आपका एटिकेट बताना है, आप लोग को बताना है कि आप कितने अच्छे हैं. ओके. सो सिंपली इंप्रेशन मारने के लिए, इंप्रेशन मारने के लिए बहुत अच्छा है ये. एग्जैक्टली. मतलब नहीं वहाँ पे सामने लोग, मतलब हमें इंटर्नशिप वगैरह मिली तो ऐसे लिखने का क्या? हाँ एग्जैक्टली. राइट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बिकॉज सी अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जब आप लोग ऐसे टाइप का कोई लेटर अगर आप लोग किसी को अगर बिना मांगे भी अगर देंगे ना, तो सामने वाले बोलेगा यार बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है यार ये, तो वो थोड़ा सा टचक जाएगा आपके सामने आने से पहले. टचके का मतलब ये नहीं कैसा बोलेगा यार वो बंदा जरा कुछ ज्यादा हाई लेवल का प्रोफेशनल लेवल का है, तो उससे अपन ऐसा एडवांस फालतू बात नहीं कर सकते. मींस डिसिप्लिन है उसके इसमें है, लेवल में स्टैंडर्ड है. हाँ. नेक्स्ट वन, लेटर फॉर कंप्लेनिंग लेटर टू कंप्लेन अबाउट द नेबर अबाउट स्मोक. ओके, अभी हम लोग नेबर को स्मोक के बारे में अपना कंप्लेंट कर रहे हैं. ओके, अभी अपने नेबर को हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते, तो बहुत अगर समझो अपन बहुत हाई क्लास सोसाइटी के अंदर आप लोग रह रहे हैं तो नेबर की गचंडी पकड़ नहीं सकते. अभी आजकल का तो कैसा है कि बाबा अपन जा रहे हैं किसको भी मार रहे हैं, ऐसा होता नहीं. हाई क्लास सोसाइटी के अंदर आपको धुआं आ रहा है आप लोग को बहुत से सिगरेट का, तो आप लोग उसके लिए लेटर लिख रहे हैं. ओके, सो योर सेंडर्स एड्रेस, कौन है बंदा ये बाबा, तो बंदा कौन है उसका एड्रेस आएगा with the dates. Next, dear Mr. Heslop. अभी हो सकता है कि कभी कभी आप जानते रहेंगे पर वो आपको जानता नहीं है, तो आप लोग उसका एड्रेस लिखने जरूरी नहीं क्योंकि आपको मालूम है कहाँ रहता है वो. आई एम सॉरी टू appear unneighborly
but I really must ask you to exercise a little more thought with regard to your bonfires. See उसने कितना भारी और कितना beautiful लिखा, उसने लिखा कि तेरी तो साले उधर रख तेरा bonfire, नहीं तो तोड़ डालूंगा मैं, बोला उसने उसको. नहीं, हमारी तरफ बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है. नहीं, I am sorry to appear unneighborly, but I really must ask you to exercise a little more through thought with regard to your bonfires. उसने पहले उसको रिक्वेस्ट किया, this is what the subject के तौर पे यहाँ पे ऐड किया है. Whilst understanding your necessity like everyone else to burn garden rubbish, could I suggest you that you refrain from your doing it when the wind is blowing and in a strong southerly direction? It is quite impossible to sit in the garden when you have a bonfire in such conditions, and smoke also penetrates into the houses, even the windows closed. विंडो बंद होने के बाद में भी आपका जो है जा रहा है, तो आप मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर उसको अगर विंड के टाइम पे अगर ना जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वो फायर की वजह से हमारा क्या हो रहा है, स्मोक हमारे घर में घुस रहा है. ट्रस्टिंग दैट यू विल सी दैट वी आर पुट टू नो फर्दर इनकन्वीनियंस. सी, और मैं आपको चाहता हूँ, उसने देखो कितनी मीठी धमकी दिया उसको. ट्रस्टिंग दैट यू विल सी दैट वी आर पुट टू नो फर्दर इनकन्वीनियंस, और मैं चाहता हूँ कि आप हमको और तकलीफ में नहीं डालेंगे, वरना मैं आपको बराबर कोर्ट का रास्ता दिखा डालूंगा. योर सिंसियरली पीटर हिक्स. दिख रहा है, योर सिंसियरली पीटर हिक्स मीन्स व्हाट, आपका सिंसियरली, आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ मैं, आपका सिंसियरली हूँ. मैंने बोला था ना फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर में चलता है, इसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ, योर सिंसियरली पीटर हिक्स. ओके, गुड. नेक्स्ट वन, अपॉलॉजी फॉर अनफोर्सीन एब्सेंस. अब अगर आप लोग कंपनी में अगर कभी अगर एब्सेंट रहे, ऐसा कुछ हुआ, तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं? For example, आपका address, no name, address will be their date, the receiver's address, no comma, no pima, nothing is there. Dear Mr. Smith, dear Mr. Smith, आपके बॉस को आप लोग लिख रहे हैं. I regret that I was unable to return to work on 4th September. I will report for work tomorrow at the normal time. Unfortunately, my flight from Majorca, flight number this and that, which was due to depart at 1 p.m. on 3rd September, was delayed by adverse weather conditions. I eventually took off at 10 a.m. today and arrived home at about 5 p.m. I am so sorry for any inconvenience my absence may have caused. Simple and short. उसने क्या किया है देखो, वहां पे पहले तो उसने माफी मांगा है, मैं रिग्रेट करता हूँ. दूसरा उसने कंडीशन बताया, उसका क्या सिचुएशन था, किसकी वजह से लेट हुआ वो, एंड आई एम सॉरी अगेन, उसने सॉरी बोलकर उसको खत्म किया है. मैंने एक बार सॉरी बोला ना, दूसरी बार क्यों बोलूं, ऐसा नहीं करना. सो दिस इज व्हाट, उसने पहले सॉरी बोला एंड देन हियर उसने लास्ट में योर सिंसियरली बोलकर फिनिश किया. नेक्स्ट, ऑफरिंग रेजिग्नेशन. सी कितना शॉर्ट एंड स्वीट है, वाओ. आगे थोड़ा है इसका, नहीं आगे है, बट कितना शॉर्ट एंड स्वीट लग रहा है. देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है उसका स्टार्टिंग का लाइन. देखो आप लोग खाली, या आप लोग अगर आपका ऑफरिंग रेजिग्नेशन मतलब आप लोग अगर रिजाइन मार रहे हैं कंपनी के अंदर, तो वो कैसे मारना है? योर एड्रेस, द कंपनीज एड्रेस विद द नेम. अब आप जो रिजाइन मारने वाले हैं, तो आप लोग का जो एचआर रहेगा उसको मिस्टर हॉबिस, डियर मिस्टर हॉबिस, मेरे प्यारे हॉबिस. पेमेंट लटकाना वरना मत, इसके लिए अपन उसको एकदम प्यार से नाम से टाइटल वगैरह लगा के दे रहे, डियर वगैरह लगा रहे. क्यों? क्योंकि प्यार में मिठे में लेना, क्योंकि अपने को ज्यादा टाइम पे कोई लफड़ा नहीं चाहिए. I've been offered and have decided to accept the position of sales manager with Broom and Sons Limited. I am writing therefore to give the appreciate 4 weeks notice to terminate my employment with the company on 27th October. मैं बहुत मतलब चाहता हूँ, और आप लोग के लिए मैं appropriate for 4 weeks का मैं notice period चाहता हूँ. I've been very happy during my 5 years here. अब देखो तारीफ कर रहा है, क्यों? क्योंकि मिठे में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर उसने कभी अगर रिजेक्ट किया तो लटक सकते फिर अपन. मिठे में ले रहा है, देखो अभी उसको मस्का लगा रहा है. I've been very happy during my 5 years here and it was with this some sorrow that I reached this decision. बहुत ही दुख की बात है कि मैं ये डिसीजन पे आया हूँ. However, my new position offers considerably more scope and responsibility than my present one. अब देखो उसने बोला कि मला तिथं जास्त पैसे भेटते त्यामुळे मी चाललो तुम्हाला लात घालून. नहीं, उसने क्या बोला देखो, my new position offers considerably more scope and responsibility than my present one. यहाँ पे simply वहाँ पे considerably scope कुछ नहीं, पैसे की बात चल रही है, वो पैसे और प्रमोशन की बात चल रही है. दिख रहा है मिस्टर रफीक? यस सर.
तो पैसा और उसने पैसे के और उसको पैसा और पोजीशन के बारे में देखो उसने क्या यूज किया, मोर स्कोप मुझे मिल रहा है वहां पर और मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे वहां पे मिल रही है यहाँ से ज्यादा, मतलब मेरे को वहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है करके मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ. I would like to take this opportunity to thank you for all of the support and guidance you have given me more over the past 5 years. Yours sincerely, Frank Rain. Okay, if you have not been happy in your employment, you may want to omit the last two paragraphs. अगर आपके क्या बोलते हैं अपने काम के अंदर अगर आप लोग खुश नहीं है तो आप लोग ये लास्ट के 2 पैराग्राफ्स को उड़ा सकते हैं. Getting it? आप उड़ा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग ये लिखिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों को कंपनी के अंदर रिजाइन मारने के लिए बहुत जल्दी मिलेगा. नेक्स्ट, कंडोलेंस. अगर कोई मर भी गया तो आप उसको फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल अभी आपके बॉस के घर पे कोई मैयत हो गई या फिर आपके घर पे अगर कुछ ऐसा हो गया और आपका बॉस आपको लेटर लिख रहा है तो कैसे लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस का लिखने का टाइम नहीं है अपने पास में, क्योंकि इट इज व्हाट फॉर्मल लेटर और आपको पता है कि किसको लिखना है. नेक्स्ट वन, क्योंकि ये सेमी फॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आप लोग कंडोलेंस कर रहे हो, मर गया कोई. सो डियर मिसेस ब्रॉस. ओके, नाउ वन मोर थिंग इज देयर, अगर हम लोग यहाँ पे किसी को कंडोलेंस कर रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे? पहली बात तो डियर लगाएंगे ताकि वो आदमी को हम लोग को कंफर्ट करना है, वो इंसान को कंफर्ट करना है. सेकंड थिंग, मिसेस एंड नॉट ब्रॉस, आई वाज डीपली सॉरी. देखो अभी कंडोन कर रहा है वो सामने वाला कि बाबा तुम्हारे इधर मर गए ना, उसके लिए मैं कंडोन कर रहा हूँ. सो फॉर दैट यू हैव टू से दैट डायरेक्टली, आई वाज डीपली सॉरी टू हियर द न्यूज़ ऑफ पीटर्स सडन डेथ last Tuesday. Please accept my sincerest condolences. I don't think that I need to tell you how much he was rejected, respected and liked by everyone at the club, and he will be greatly missed. If there is anything that I can do to help in my any way, you must not hesitate to ask. You can reach me out anytime freely, and I'll be helping you with this one. With kindest regards, George Redman. दिख रहा है आप लोगों को? फर्स्ट लाइन में उसने क्या किया है, उसने बहुत ही सॉरी बोला है, और सेकंड में उसने सेकंड सेंटेंस जो लिखना स्टार्ट किया, आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू टेल यू हाउ मच ही वाज रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड बाय एवरीवन एट द क्लब, ही विल बी ग्रेटली मिस्ड. और वो बहुत ही ज्यादा मिस किया जाएगा. बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत भारी था. इसने खाली पहले लाइन में क्या करा, सॉरी बोला. दूसरी लाइन में उसने उसको क्या किया कि उसकी रिस्पेक्ट किया मरने वाले की. और तीसरी लाइन में उसने हेल्प के लिए बोला है. इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू टू हेल्प इन एनी वे, you must not hesitate to ask me. You can freely approach me as a brother and I'll be helping you with my all kind. With kindest regards. बहुत ही आपको रिस्पेक्ट के काइंड के साथ में रिगार्ड देता हूँ, जॉर्ज रेडमैन. Getting it? Guys, any doubts? समझ में आया आप लोगों को? और सी, एक भी लेटर के अंदर थैंक यू भी मिला आप लोगों को कहीं पर? नहीं. कहीं पे कॉमा मिला आप लोगों को? नहीं. कहीं पे कुछ टेढ़े चले मिले? बिल्कुल भी नहीं. So this is what the letter writing. I'm going to share with you the PDF on your WhatsApp. All right? बाप रे क्या हो रहा है अनवर? साउंड आ रहा है किसका? तो अनवर म्यूट है. So this is what सबसे beautiful letter था. कितना स्वीट लेटर है, एकदम इजी है. आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं and I'll be sharing with you this directly on your WhatsApp. Okay? और आपको मैं आपके क्लासरूम में भी डाल के दे दूंगा. और आप लोग को आपका जो गिफ्ट है वो भी मिल जाएगा. ओके, सूनर. और आप लोग को ऑडियोज भी दे दूंगा मैं आज थोड़ी देर से. हाँ, अभी मेरा क्लास है डायरेक्टली, तो तभी इसे सेंड नहीं कर सकता हूँ मैं. सब चीजें आप लोग को आज के आज में सेंड कर दूंगा. बाय. Cheerio. I hope you don't have any problems with it and the session was good. I believe so. And if you have any questions regarding this, you can ask me. Yeah. So I hope you will love it and you will have to just practice at home for the letters. और आप and if you बुक have भी any शेयर करने वाले?